السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی سورہ احزاب کے راز اور تفسیر جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر قرآن کے سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی اس عظیم الشان سورۃ الاحزاب کا آغاز کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان، عقیدے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس میں ختم نبوت کی مہر لگائی گئی، اور یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے وہ وظیفہ بتایا جو وہ خود بھی کرتا ہے۔ لیکن اس سورت کے آغاز میں اللہ نے ایک ایسے خوفناک جنگی منظر کا نقشہ کھینچا ہے جس نے مسلمانوں کو جڑ سے ہلا دیا تھا۔ آج ہم تاریخ کے اسی خونی ورق کو پلٹیں گے، غزوہ خندق کا وہ منظر جب پورا عرب مدینہ کو مٹانے آ گیا تھا، اور پھر اللہ نے ہواؤں کو اپنا لشکر بنا کر بھیجا۔ الاحزاب جب پورا عرب دشمن بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسلام دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ یہودیوں نے ایک سازش تیار کی، وہ مکہ گئے اور قریش کو بھڑکایا، پھر دوسرے قبائل غطفان وغیرہ کو ساتھ ملایا۔ تاریخ میں پہلی بار عرب کے تمام بڑے بڑے قبیلے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایک ہو گئے۔ اس سورت کا نام الاحزاب دی کنفیڈریٹس اس لیے ہے کیونکہ احزاب کا مطلب ہے لشکروں کے گروہ۔ 10 سے 12 ہزار کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر مدینہ کی طرف بڑھا، دوسری طرف مسلمان صرف 3,000 تھے۔ اگر وہ لشکر مدینہ میں داخل ہو جاتا تو معاذ اللہ اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ خندق کی کھدائی اور بھوک کا عالم۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق یعنی ٹرنچ کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تاریخ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی۔ صحابہ کرام پتھر توڑتے، مٹی اٹھاتے اور بھوک سے نڈھال ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک نے ہمیں بے حال کر دیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ بھوک کا احساس کم ہو۔ یہ سن کر کائنات کے والی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ حضور کے شکم اطہر پر ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی غلاموں سے زیادہ بھوک آقا نے برداشت کی ہوئی تھی۔ یہ تھی وہ قربانی جس کی بنیاد پر آج اسلام ہم تک پہنچا۔ صائب و محاصرہ اور خوف آنکھیں پتھرا گئیں۔ خندق کھد گئی، دشمن آ گئے اور محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینہ جاری رہا۔ نہ باہر سے کھانا آ سکتا تھا، نہ کوئی باہر جا سکتا تھا۔ اوپر سے منافقین نے اندر ہی اندر افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ اب تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ قرآن نے اس خوف کا نقشہ آیت نمبر 10 میں کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی خوف کی انتہا تھی۔ مسلمان اللہ کے امتحان کی چکی میں پس رہے تھے کہ کیا یہ اب بھی نبی کا ساتھ دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد، ٹھنڈی ہوا کا طوفان۔ جب صبر کی حد ہو گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ آسمان سے کوئی پتھر نہیں برسے، زمین نہیں پھٹی،
अल्लाह ने अपनी एक खामोश फौज भेजी। कुरान कहता है फ़अरसलना अलैहिम रीहा, यानी हमने उन पर एक नदीदा हवा भेज दी। रात का वक्त था, अचानक एक खौफनाक आंधी चली। ये हवा इतनी ठंडी और तेज़ थी कि उन्होंने कुफ्फार के खैमों की तनाबें तोड़ दीं। उनके खैमे उखड़कर हवा में उड़ने लगे। उनकी हांडियां जिनमें खाना पक रहा था चूल्हों पर उलट गईं। आग बुझ गई, अंधेरा छा गया। कंकरियां उड़ उड़कर उनके चेहरों पर लगने लगीं। साथ ही अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर उतारा जिन्होंने उनके दिलों में रौब डाल दिया। अबू सुफियान, जो उस वक्त लश्कर का सरदार था, चीख उठा, भागो, यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं, हलाक हो जाओगे। वो ऐसा भागे कि अपना सामान भी छोड़ आए। मेरे दोस्तों, ग़ज़वा खंदक हमें बताता है कि जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ इकट्ठी हो जाए, अगर आपका ताल्लुक़ दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मज़बूत है और अल्लाह पर तवक्कुल है, तो हवाएं भी आपकी मददगार बन जाती हैं। अल्लाह अपने नबी को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस फतह के बाद अल्लाह ने सूरतुल अहज़ाब में एक ऐसा आईन, कॉन्स्टिट्यूशन नाजिल किया जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मकाम को वाज़ह कर दिया। आयत नंबर 6 में अल्लाह ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना, ये नबी तो मोमिनों की जानों पर खुद उनसे ज़्यादा हक रखते हैं, ज़्यादा करीब हैं। इस आयत का मतलब क्या है और हमारी जान पर पहला हक किसका है? अजीज दोस्तों, हमने ग़ज़वा खंदक का खौफनाक मंजर देखा, लेकिन जंग के धुएं से निकलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहज़ाब में एक ऐसा रूहानी कानून बयान फरमाया जिस पर हमारे ईमान की इमारत खड़ी है। ये आयत नंबर 6 है। ये वो आयत है जो एक मुसलमान और काफिर के दरमियान लकीर खींचती है। ये आयत बताती है कि कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि कलमे वाले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ की नौइयत क्या होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ये नबी तो मोमिनों की जानों पर खुद उनसे ज़्यादा हक रखते हैं, ज़्यादा करीब हैं। लफ्ज़ औला पर गौर करें। अरबी में इसका मतलब सिर्फ बेहतर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है मालिक, मुख्तार और सबसे ज़्यादा करीब। आम इंसान की फितरत यह है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी ज़ात से होता है। इंसान कहता है मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी, मेरा फ़ैसला। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में इस मेरी को ख़त्म कर दिया है। अल्लाह फरमा रहा है, ए मोमिनो, तुम्हारा अपने ऊपर इतना हक नहीं जितना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तुम पर हक है। अगर तुम्हारा दिल चाहे कि आराम करूं और नबी का हुक्म आ जाए कि जिहाद करो, तो तुम्हारी अपनी चाहत ख़त्म, नबी का हुक्म मुक़द्दम। साहिबो, 1 मिनट रुकिए। आज की इस पहली नशिस्त में हमने सियालवी से ग़ज़वा खंदक का वो तारीख़ी और लर्ज़ा ख़ेज़ मंज़र देखा जब पूरा अरब मुत्तहिद होकर मदीना को मिटाने आ गया था और मुसलमानों पर खौफ और भूख का ऐसा आलम तारी था कि पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। हमने देखा कि जब आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए, तब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुनी और ठंडी हवाओं का ऐसा लश्कर भेजा जिसने दुश्मन के खैमे उखाड़ दिए और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। हमने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन का राज समझा कि हमारा अपनी जानों पर इतना हक नहीं जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है। हमारा वजूद हमारा नहीं बल्कि उनका अता करदा है और उनकी मर्जी हमारी जान से मुक़द्दम है। तो दोस्तों, जब नबी का मकाम इतना ऊंचा है कि वो हमारी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, तो क्या उनके बाद कोई और नबी आ सकता है? अब हम अपने ईमान के सबसे अहम और हसास अक़ीदे पर बात करेंगे। ख़ातिमुन नबिय्यीन का असल मतलब क्या है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को नबूवत के महल की आखिरी ईंट क्यों फरमाया? अल्लाह ने ये क्यों वाज़े किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के जिस्मानी बाप नहीं है? इसमें क्या हिकमत छुपी थी? और सबसे अहम बात, मुर्शिद करीम पीर सियाल लजपाल की नई किताब अक़ीदा ख़त्म नबूवत की रोशनी में हम जानेंगे कि क्या हमें अब किसी नए नबी की ज़रूरत है और जो शख्स ख़त्म नबूवत का इनकार करे उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन साहिबो, अभी पिछले हिस्से का तसलसल बाकी है, वो ये कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामकर मोहब्बत का इजहार किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि ए उमर, अभी नहीं? वो कौन सा जुमला था
जिस के बाद ईमान मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने नबी की बीवियों को मोमिनों की माएँ क्यों करार दिया? इस रिश्ते का हम पर क्या हक है? आइए अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस अहम तरीन अकीदे को समझते हैं। जी असद। जी शुक्रिया। तो भाइयों, बिल्कुल अगर तुम्हारा जी चाहे कि माल बचा लूं और नबी की नज़र उठ जाए कि माल ले आओ, तो सब कुछ कुर्बान करना होगा। सूफियाना नुक्ता। औलियाए कराम फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि हमारी सांसों पर भी हमारा इख्तियार नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी का इख्तियार है। हमारा वजूद अपना नहीं, उनका अता करदा है। हम उनके गुलाम नहीं, बल्कि उनके खरीदे हुए हैं, और जो खरीदा हुआ हो उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। यही ईमान की मेराज है। साहिबो दलील हज़रत उमर फारूक का तारीखी मवाजना। इस अकीदे को समझने के लिए बुखारी शरीफ की वो मशहूर हदीस सुने जिसने मोहब्बत के पैमाने तय कर दिए। एक बार हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थामा हुआ था। मोहब्बत का आलम था। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, आप मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं, सिवाय मेरी अपनी जान के, यानी जान के बाद आपका नंबर है। ये एक फितरी बात थी। इंसान को जान सबसे प्यारी होती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ए उमर, ईमान मुकम्मल नहीं। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। जैसे ही ये अल्फाज हज़रत उमर के कान में पड़े, उनके दिल की कैफियत बदल गई। निगाह नबूवत का असर हुआ। उन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और फिर पुकार उठे, अब बखुदा आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आना या उमरू, अब बात बनी है उमर, अब ईमान मुकम्मल हुआ। सबक। दोस्तों, जब तक औलाद, माँ बाप, कारोबार और अपनी जान तराजू के एक पलड़े में और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे पलड़े में ना हो और इश्क वाला पलड़ा भारी ना हो जाए, तब तक हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। नबी का एहसास, वो हमसे ज़्यादा हमारे खैरख्वाह हैं। सवाल यह है कि नबी का हक हमारी जान से ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि हम अपनी जान को हलाकत यानी जहन्नम में डालते हैं और वो हमें खींचकर जन्नत की तरफ ले जाते हैं। कुरान में दूसरी जगह फरमाया, हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई के शदीद निहायत चाहने वाले ख्वाहिशमंद हैं। हम सोते हैं, वो हमारे लिए जागते हैं। हम गुनाह करके हंसते हैं, वो हमारे गुनाहों पर रोते हैं। क़यामत के दिन जब हर कोई नफसी नफसी पुकारेगा तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती। तो जिस हस्ती ने हमें दुनिया में भी संभाला और आखिरत में भी बचाना है, क्या उसका हक ये नहीं बनता कि हम अपनी मर्जी उनकी मर्जी में फना कर दें? अल्लामा इकबाल ने इसी राज को समझा तो कहा कि मोहम्मद से वफा तूने की तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। उम्महातुल मुमिनीन, माओं का अदब। आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ने एक और रिश्ता जोड़ा। फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां इन यानी मोमिनों की माएँ हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ माँ से मुराद जिस्मानी माँ नहीं, यानी इनसे विरासत नहीं मिलती, बल्कि रूहानी माँ और इज्जत व एहतराम वाली माँ है। इस रिश्ते के दो बड़े तकाजे हैं। हुर्मत निकाह, चूँकि वो हमारी माएँ हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद किसी भी उम्मती के लिए उनसे निकाह करना हराम करार दिया गया क़यामत तक। कुछ मुनाफिकीन ने दिल में नाजेबा ख्यालात लाए थे, अल्लाह ने उनका मुंह बंद कर दिया कि खबरदार, ये तुम्हारी माएँ हैं। इंतहाई अदब। जैसे इंसान अपनी सगी माँ के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता, उसकी गुस्ताखी नहीं कर सकता, तो हज़रत सैयदा खतीजा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा हफ्सा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुन और बाकी तमाम उम्महातुल मुमिनीन का अदब हम पर सगी माँ से ज़्यादा लाजिम है। हमारे मसलक के हक़ का इम्तियाज़ यही है कि हम अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं और उम्महातुल मुमिनीन के भी खादिम हैं, क्योंकि ये दोनों निस्बतें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। जिसने माँ को सताया, उसने बाप को तकलीफ़ दी। तो दोस्तों, सूरतुल अहज़ाब का ये पहला राज आयत नंबर 6 हमारे अकीदे की बुनियाद है। नबी का हुक्म हमारी जान से पहले है, नबी की मोहब्बत हर रिश्ते से बढ़कर है
اور نبی کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تب اللہ اپنے بندے کو اگلا تمغہ عطا کرتا ہے۔ اگر نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ ہماری جانوں کے مالک ہیں تو پھر ان کا رتبہ کیا ہے؟ کیا ان کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے؟ اگلی آیت نمبر 40 وہ آیت ہے جس نے ہر جھوٹے مدعی نبوت کا منہ کالا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا۔ عزیز دوستو، ہم سورۃ الاحزاب کے سفر میں اس مقام پر آ پہنچے ہیں جو ہمارے ایمان کی سرحد ہے، بارڈر لائن ہے۔ اگر کوئی اس لکیر کو پار کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے تیر کمان سے۔ اب ہم آیت نمبر 40 کا ذکر کریں گے جس نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا۔ لیکن دوستو، اب ہم خاص طور پر عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی، موجودہ سجاد نشین آستانہ عالیہ سیال شریف کی تالیف عقیدہ ختم نبوت جو حال ہی دنوں میں شائع ہوئی ہے، اس سے وہ موتی چن کر لائے ہیں جو آپ کے ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ حضور مرشد کریم پیر سیال فرماتے ہیں کہ اس روشنی میں اس آیت کے دو اہم حصے ہیں: نفی، نیگیشن، آپ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، اس بات ایفرمیشن، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ لفظ خاتم، جسے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا، کا لغوی اور شرعی مطلب ہے آخر، دا اینڈ، یعنی جس طرح مہر لگنے کے بعد خط بند ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ سیل، آخر، دا اینڈ، جس پر سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر لاک ہو گیا۔ اب قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اینٹ۔ مرشد کریم نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 8 پر صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث نقل کی ہے جو اس مسئلے کا حتمی فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تفسیر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت حسین اور خوبصورت محل بنایا ہو لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو۔ لوگ اس محل کے گرد گھومتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ آخری اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی۔ سن لو، میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مرشد کریم کی تحقیق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے وہ خلا پر ہو گیا اور نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اگر کوئی نئی اینٹ لگانے کی کوشش کرے گا تو وہ عمارت کی خوبصورتی کو بڑھائے گا نہیں بلکہ اس میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ نئے نبی کی ضرورت کیوں نہیں؟ منطقی دلیل، صفحہ نمبر 5 سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟ کتاب عقیدہ ختم نبوت میں حضور ضیاء الحق نے اس کا بہت زبردست عقلی جواب دیا ہے۔ نبی عام طور پر 3 وجوہات کی بنا پر آتا تھا: پچھلا دین نامکمل ہو، پچھلی تعلیمات ضائع ہو گئی ہوں یا بدل گئی ہوں، یا پچھلے نبی کی شریعت کسی خاص علاقے تک محدود ہو۔ لیکن قرآن کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یعنی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔ جب دین مکمل ہے، کتاب محفوظ ہے اور نبوت عالمگیر ہے
तो फिर किसी नए नबी की गुंजाइश कहां बाकी रहती है? कोई नया नबी आकर क्या करेगा? ये आयत चक्रीबाजों और झूठे नबियों के रास्ते की रुकावट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 बड़े झूठे दज्जाल पैदा होंगे। हर एक दावा करेगा कि मैं नबी हूं, हालांकि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आज अगर कोई शख्स, चाहे मिर्जा कादियानी हो या कोई और, नबूवत का दावा करता है तो वो इस आयत का इनकारी है और दायरे इस्लाम से खारिज है, मुर्तद और जिंदीक है। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जब आसमान से मुहर लग गई तो अब कोई खिड़की नहीं खुल सकती। यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब क़यामत के करीब आएंगे तो वो नए नबी बनकर नहीं, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और खलीफा बनकर आएंगे। साहिबो सहाबा का इज्तिमा और मुनकिरीन का हुक्म, सफ़ा नंबर 10 और 13 से। भाइयों, एक मिनट। इस दूसरे हिस्से में हमने असद से ख़त्म नबूवत का वो किला फतह किया जिसमें कोई नक़ब नहीं लगा सकता। हमने जाना कि खातिम का मतलब है मुहर, यानी नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए लॉक हो चुका है। हमने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा कि आप आखिरी ईंट हैं। हमने मुर्शिद करीम हुजूर ज़ियाउच्चिश्त गरीब नवाज की तहकीक से ये नुक्ता पाया कि जब दीन मुकम्मल हो चुका है तो किसी नए नबी की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। हमारा जीना और मरना इसी अकीदे पर है कि ला नबी आबादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। लेकिन दोस्तों, जब नबूवत ख़त्म हो गई तो अब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ कैसे लेंगे? अब हम इस वजीफ़े का जिक्र करेंगे जो अल्लाह की सुन्नत भी है। वो कौन सा अमल है जो अल्लाह खुद करता है, फरिश्ते करते हैं और फिर हमें हुक्म दिया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना। दुरूद पढ़ना और सलाम भेजने में क्या फ़र्क है? अल्लाह का दुरूद क्या है और हमारा क्या है? और सबसे खौफनाक वार्निंग, अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि जो मेरे नबी को ईज़ा यानी तकलीफ़ देगा उस पर मेरी लानत है। आज के दौर में गुस्ताखी और ईज़ा रसानी की क्या शक्लें हैं? आइए इस मोहब्बत और गैरत भरे पैगाम को सुनते हैं। जी असद। साहिबो सहाबा का इजमा और मुनकिरीन का हुक्म, सफ़ा नंबर 10 और 13 से। किताब के सफ़ा नंबर 10 पर एक बहुत बड़ा तारीख़ी हवाला है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के फ़ौरन बाद मुसैलमा क़ज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और तमाम सहाबा किराम ने उसके ख़िलाफ़ क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इसे नमाज पढ़ने दो। नहीं, सहाबा ने उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग यानी जिहाद किया। जंग यमामा हुई और 700 हुफ़ाज़ कुरान शहीद हुए, लेकिन सहाबा ने उस झूठे नबी का फितना ख़त्म करके रख दिया। फतवा अकबर। हुजूर मुर्शिद करीम ने वाज़ेह किताब में लिखा है कि जो शख्स ख़त्म नबूवत का इनकार करे या किसी नए नबी को माने, जैसे कादियानी, वो दायरे इस्लाम से खारिज, मुर्तद और जिंदीक है। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो दोस्तों, आस्ताना आलिया सियाल शरीफ की इस तहक़ीक़ और कुरान की आयात से ये साबित हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबूवत का दावा करे वो दज्जाल और कज़्ज़ाब है। हमारा जीना और मरना इसी अक़ीदे पर है। तो दोस्तों, सूरतुल अहज़ाब की ये आयत हमारे लिए रेड लाइन है। हमारी जान तो जा सकती है, लेकिन हम ख़त्म नबूवत पर डाका नहीं डालने दे सकते। अब सवाल ये है कि जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया तो अब इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसे जुड़ा रहेगा? हम इनसे फैज़ कैसे लेंगे? अल्लाह ने अगली ही आयात में वो तोहफ़ा अता कर दिया जो अल्लाह की सुन्नत भी है और हमारी इबादत भी। वो है दुरूद व सलाम। क्या आप जानते हैं कि दुरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जो अल्लाह अपने बंदों के साथ मिलकर करता है? आइए पहले देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान किस अंदाज में बयान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। सूरतुल अहज़ाब 56। इबादत और मोहब्बत का फ़र्क, अल्लाह की सुन्नत। मेरे दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा नुक्ता या पॉइंट समझें जो हमारे ईमान की बुनियाद है। कुरान में अल्लाह ने बहुत से हुक्म दिए।
फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, लेकिन अल्लाह खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो माबूद है। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े रखो, लेकिन अल्लाह खुद रोज़ा नहीं रखता, वो खाने पीने से पाक है। फरमाया ज़कात दो, हज करो, अल्लाह ये सब नहीं करता, वो बेनियाज है। ये सारी इबादतें अल्लाह का हुक्म तो है, लेकिन अल्लाह की सुन्नत या तरीक़ा नहीं है, क्योंकि वो ये काम नहीं करता। लेकिन पूरी कायनात में सिर्फ एक अमल ऐसा है जो मेरे रब का हुक्म भी है और मेरे रब की सुन्नत भी है, और वो है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ लोगो दुरूद पढ़ो, बल्कि पहले अपना अमल बताया, इन्नल्लाह, यानी बेशक मैं अल्लाह खुद भी अपने महबूब पर रहमत भेजता हूँ। फिर फरिश्तों का बताया, व मलाइकतहु, और मेरे सारे फरिश्ते भी यही काम करते हैं। और फिर हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालो, अब तुम भी वो काम करो जो तुम्हारा रब करता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ना वो वाहिद इबादत है जिसमें खालिक और मखलूक शामिल हैं। ये आशिकों के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। युसल्लूना का राज, ये अमल कभी नहीं रुकता। अब ज़रा अरबी ग्रामर के एक लफ्ज़ पर गौर करें, युसल्लूना। अरबी में ये फ़ेल मुज़ारे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब है वो दुरूद भेजते हैं और भेजते ही रहेंगे, यानी ये कोई ऐसा काम नहीं जो एक बार हुआ और ख़त्म हो गया। नहीं, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, इस लम्हे भी अर्श मौला पर अल्लाह की रहमतें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूम झूम कर बरस रही हैं। फरिश्ते कतारों में खड़े सलाम पेश कर रहे हैं। ये नॉन स्टॉप अमल है। कायनात रुक सकती है, लेकिन ज़िक्र मुस्तफ़ा का ये सिलसिला नहीं रुक सकता। अल्लाह का दुरूद क्या है और हमारा क्या है? यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हम और अल्लाह एक जैसा काम करते हैं? नहीं, लफ्ज़ एक है, सलात या दुरूद, लेकिन मतलब अलग है। अल्लाह का दुरूद भेजना, इसका मतलब है अपनी रहमत ख़ास नाजिल करना, अपने महबूब का मकाम बुलंद करना और उनकी तारीफ़ करना। फ़रिश्तों का दुरूद, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना और उनके दरजात की बुलंदी मांगना। मोमिनों का दुरूद, इसका मतलब है आजिज़ी से दुआ करना कि ए अल्लाह, हम इस काबिल नहीं कि तेरे महबूब की शान बयान कर सकें, तू ही हमारी तरफ से उन पर वो रहमतें नाज़िल कर जो उनकी शान के लायक हैं। हम भिखारी बनकर दुरूद पढ़ते हैं और अल्लाह बादशाह बनकर दुरूद यानी रहमत भेजता है। वसल्लिमु तस्लीमा, सिर्फ दुरूद नहीं, सलाम भी। अल्लाह ने आयत के आखिर में फरमाया, वसल्लिमु तस्लीमा, यानी और खूब सलाम भेजा करो। ये सलाम क्या है? सूफियाए किराम फरमाते हैं कि दुरूद का ताल्लुक़ ज़िक्र से है और सलाम का ताल्लुक़ हाज़िरी से है। हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये या का लफ्ज़ बताता है कि आशिक का अक़ीदा है कि मेरा नबी मुझे सुन रहा है, क्योंकि सलाम जिंदा को किया जाता है, मुर्दा को नहीं। और तस्लीमा का मतलब है अपने आप को उनके हवाले कर दो, सबमिट कर दो, ज़ाहिरी अदब भी करो और बातिनी भी। मेरे दोस्तों, जब हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह हम पर 10 रहमतें भेजता है। ये वो वजीफ़ा है जो अगर कबूल ना भी हो बफ़र्ज़ मुहाल तब भी सवाब मिल जाता है, क्योंकि इसमें महबूब का नाम है। लेकिन जिस तरह इस आयत ने मोहब्बत का दरवाज़ा खोला है, इसी तरह अगली आयत 58 में अल्लाह ने जलाल की तलवार भी नियाम से निकाल ली है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी ने मेरे इस महबूब को ईज़ा दी तो उस पर मेरी लानत है। गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजाम क्या है और अल्लाह और रसूल को तकलीफ़ देने का मतलब क्या है? अज़ीज़ दोस्तों, पिछली निशिस्त में हमने आयत दुरूद सुनी और झूम उठे, लेकिन सिक्के का एक दूसरा रुख भी है। जिस रब ने अपने महबूब के लिए रहमत के दरवाजे खोले हैं, उसी रब ने अपने महबूब के दुश्मनों के लिए लानत के दरवाजे भी खोल दिए हैं। सूरतुल अहज़ाब की अगली ही आयत 57 में अल्लाह ने एक ऐसा ऐलान जंग किया है जो ज़मीन व आसमान को हिला देता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ या ईज़ा देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और अल्लाह ने उनके लिए जलील कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। 1. अल्लाह को तकलीफ़, नाजुक तरीन मसला। मेरे दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या कोई इंसान अल्लाह को तकलीफ़ दे सकता है? अल्लाह तो जिस्म से पाक है, इसे कोई कैसे सताएगा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं
यहाँ यूज़ून अल्लाह यानी अल्लाह को ईज़ा देने से मुराद अल्लाह के नबी को ईज़ा देना है। अल्लाह ने अपने महबूब की ज़ात को अपनी ज़ात के साथ ऐसा जोड़ दिया है कि फरमाया, खबरदार, जिसने मेरे मोहम्मद का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, जिसने उन्हें गाली दी उसने मुझे चैलेंज किया। ये है नामूसे रिसालत का मकाम। अल्लाह अपनी तौहीद पर हमला बर्दाश्त कर सकता है, तौबा का मौका देता है, लेकिन अपने महबूब की शान में गुस्ताखी पर फौरन गैरत में आ जाता है। 2. ईज़ा और गुस्ताखी क्या है? जदीद दौर का फितना। आज के दौर में ईज़ा रसानी की कई शक्लें हैं। गुस्ताखी, ब्लास्फेमी, माज़अल्लाह कार्टून्स बनाना, खाके बनाना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी के अल्फाज बोलना, ये सीधा कुफ्र है। सुन्नत का मजाक उड़ाना, ये वो जुर्म है जो हम मुसलमान भी कर जाते हैं। अगर किसी ने दाढ़ी रखी हो और कोई कहे ये क्या बकरा बना रखा है, अगर कोई पर्दा करे और उसे दकियानूसी कहा जाए, अगर दीन की किसी बात पर तंजिया हंसा जाए, याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों का मजाक उड़ाना भी नबी को तकलीफ़ देने ईज़ा के ज़मरे में आता है, क्योंकि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक रंजीदा होती है। लाअनहुमुल्लाह, दोनों जहानों में ज़िल्लत। इस जुर्म की सज़ा क्या है? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं उन्हें जहन्नम में डालूंगा, बल्कि फरमाया लाअनहुमुल्लाह, यानी उन पर अल्लाह की लानत या फटकार है। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए धुतकार दिया जाना, और सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि फिद दुनिया यानी दुनिया में भी। तारीख गवाह है, अबू लहब हो या अबू जहल या आज के दौर का कोई गुस्ताख, दुनिया ने देखा कि वो कितनी बुरी मौत मरे। जिल्लत उनका मुकद्दर बनी, वो पागल हुए, कीड़े पड़े या इबरतनाक अंजाम को पहुंचे। अल्लाह फरमाता है, मैं उनके लिए ऐसा अज़ाबम मुईना यानी जलील कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है कि वो मौत मांगेंगे मगर मौत नहीं आएगी। साइबो 1 मिनट रुकिए। इस आखिरी हिस्से में हमने सूरतुल अहज़ाब के सबसे खूबसूरत और गैरतमंद पहलुओं को जाना। हमने आयत दुरूद यानी आयत 56 से समझा कि दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह की सुन्नत भी है। हमने जाना कि अल्लाह दुरूद यानी रहमत भेजता है और हम दुरूद यानी दुआ मांगते हैं, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। युसल्लूना, हमने सलाम की अहमियत समझी कि ये हाज़री और अदब की दलील है। और आखिर में हमने अल्लाह का जलाल देखा, आयत 57, कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा यानी तकलीफ़ देगा, चाहे गुस्ताखी करके या सुन्नत का मजाक उड़ाकर, उस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है। हमने समझा कि अल्लाह अपनी तौहीद पर तो ढील दे सकता है, लेकिन नामूसे रिसालत पर फ़ौरन गैरत में आ जाता है। लेकिन हजरात, क्या ये सिर्फ सुनने सुनाने की बातें हैं या अमल का भी कोई तकाजा है? अब हम इस पूरे सफ़र का निचोड़ निकालेंगे। हमने ग़ज़वा खंदक से लेकर लानत वाली आयत तक जो 4 बड़े राज जाने, उनका खुलासा क्या है? क्या इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नारे लगाने का नाम है, या हमारी ज़िंदगी और किरदार में भी कोई तब्दीली आनी चाहिए? और आखिर में हम अल्लाह के हुजूर वो ख़ास दुआ मांगेंगे जो हमें ख़त्म नबूवत का चौकीदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वफ़ादार बना देगी। आइए अपने ईमान की तजदीद करते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जी सियालवी साहब। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अज़ीज़ो मुहतरम सामईन, आज के इस अज़ीमुश्शान नशिस्त में हमने सूरतुल अहज़ाब के इन 4 बड़े राज़ों को जाना जो हमारे ईमान की बुनियाद हैं। आइए इस पूरी गुफ्तगू के हासिल और निचोड़ को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं। हमने देखा कि ग़ज़वा खंदक में कैसे पूरा कुफ्र जमा हो गया था, लेकिन अल्लाह ने हवाओं के ज़रिए अपने नबी की मदद फरमाई। फिर हमने जाना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से ज़्यादा हम पर हक़ रखते हैं। अन-नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। इसके बाद हमने ख़त्म नबूवत का ताज देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है। फिर हमने आयत दुरूद सुनी कि दुरूद वो वाहिद अमल है जो अल्लाह भी करता है, फरिश्ते भी और मोमिन भी। और आखिर में हमने वार्निंग सुनी कि जो नबी को तकलीफ़ देगा वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होगा। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का आखिरी और हतमी पैगाम ये है, हमारी ज़िंदगी का मकसद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए।
ہمیں صرف نعرے نہیں لگانے بلکہ اپنی زندگی کو ان کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ ہماری زبان سے درود جاری رہے اور ہمارے کردار سے کسی کو اسلام کے خلاف بولنے کا موقع نہ ملے۔ ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دعا کرتے ہیں بھائیوں، یا اللہ، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سورۃ الاحزاب کے فیوز و برکات عطا فرما، ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر تیرے حبیب سے محبت کریں۔ یا رب، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار بنا، ہماری زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھ اور ہمیں ان بدبختوں میں شامل ہونے سے بچا جو تیرے نبی کو ایذا دے کر تیری لعنت کے مستحق ہوئے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں اسلام کا درد اور نبی کا ادب پیدا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویڈیو کو ایک لائک تو کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں، ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔